बहुत शुक्रिया आपका मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज की जो बड़ी खबरें थी वो लगातार हमने आप तक पहुंचाई। आपको हमने दिखाया कि आज किस तरह से सीबीआई ने लगातार सवाल जवाब किए हैं रिया चक्रवर्ती से, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब देना अभी बाकी है, और रिया से कल भी हो सकती है पूछताछ। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आपको सुनाते हैं वो आवाज जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह आवाज किसी और की नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की है। यह सुशांत राजपूत की जनवरी 2020 की एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें सुशांत सिंह की बातों से लग रहा है कि उनके दिमाग में किस कदर बवंडर चल रहा था। इस ऑडियो क्लिप में जो बातें सुशांत ने कही हैं, उससे पता चलता है कि सुशांत न सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, बल्कि वो मुंबई भी छोड़ देना चाहते थे, वो बॉलीवुड को छोड़ देना चाहते थे। यह पूरी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और सुशांत के वित्तीय सलाहकारों के बीच में हुई है। आप भी सुनिए, क्योंकि सुशांत बोल रहे हैं और बहुत सारे राज खोल रहे हैं। सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद सुशांत की आवाज सुनिए। One day I feel something and the second day I feel something else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Here I'm fighting my mind. So that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. मौत के 2.5 महीने बाद सुनिए सुशांत के दिमाग में कैसा बवंडर चल रहा था। At this point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close all the, save all the money, do it in a way that I talked can. about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind. So that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide, and they have a parameter as you will guide us in that. ये इसी साल जनवरी का ऑडियो है। इस ऑडियो में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सुशांत की जिंदगी में कोई बुरा वक्त चल रहा था और सुशांत उस बुरे समय से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते थे। How do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I think Yeah, he had this insistence yesterday. trust me. इस ऑडियो में रिया चक्रवर्ती की भी आवाज है। सुशांत जिस मुश्किल में थे उससे निकलने की बात हो रही है। रिया इस ऑडियो में सुशांत का पैसा बचाने की बात कर रही है। So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs, Right. which is why they must have called you frantically. Right. They just put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with, Right. and to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. सुशांत सिंह राजपूत के मन में कैसे बवंडर चल रहे थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत शहर से बाहर जाना चाहते थे। वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। रिया और सुशांत के बीच की बातचीत का ये हिस्सा सुनिए। From city to smaller, either their place or something else that like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Pavna for some time, see that, then first see Goa, give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he wants to feel safeguarded. He's thinking of the future, like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard that, you know. I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah. Correct. So this is the first goal, is this money. Like whatever money he has, you know, invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This is the amount he's That he getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. सुशांत को प्रकृति से बेहिसाब प्रेम था। उनका प्लान था कि वो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां हरियाली हो, सुकून हो। I don't mind going to a green secluded place. Like Right. Right. Pavna. stay. Pavna.
be there for days till I like what is going on. So that's just. Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pabna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, okay, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then we can start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Yeah, we can have the plan of, I think. सुशांत सिंह राजपूत की बातों से लगता है कि वो किसी बात को लेकर बहुत उलझे हुए थे। I hardly go out of my room. Right. Yeah. And No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. their thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yes, so yeah, that's what I'm Yeah, saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. So like that, if you could plan once, then We'll figure something. We'll figure something. Yeah. We'll tell you. Just give us 2 days. Okay. We are the best people. Saviors. Saviors. पूरी बातचीत में पैसों का जिक्र है और बातचीत से लगता है कि सुशांत किसी मुश्किल में थे। ये मुश्किल क्या थी और सुशांत की इन बातों का अर्थ क्या था? ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वो एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ है, या वो एक सोलेस चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो वो इस तरह की बातें सोच सकता है, बात कर सकता है, और अगर वो नॉर्मल होगा तो शायद ये सब बातें ना करके वो पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को एक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, कैसे वो सक्सेसफुल होना है, वैसे जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2.5 महीने बाद आया ये ऑडियो बहुत कुछ साफ कर रहा है। इससे साफ है कि सुशांत परेशान थे, इससे साफ है कि उनके पैसों को लेकर प्लानिंग चल रही थी। मगर सवाल है क्यों? सुशांत इतने परेशान क्यों थे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में लगे थे? अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपने वित्तीय सलाहकारों से बेहतर भविष्य के लिए ये सलाह ले रहे थे। वो मुंबई छोड़कर अपनी पसंदीदा जगह पर बसना चाहते थे। सुशांत के इस ऑडियो से पता चलता है कि सुशांत के पैसों में रिया चक्रवर्ती की गजब की दिलचस्पी थी। सवाल यह है कि रिया सुशांत का पैसा बचाना चाहती थी या हड़पना चाहती थी? सुशांत के ऑडियो का अगला हिस्सा देखिए, आपको समझ में आएगा। Pending as soon as possible. Yeah. Huh? I can let go of these fancy cars that I've got. अपनी दिलकश मुस्कान से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में न जाने कैसा भूचाल मचा था। ऐसा भूचाल कि उन दिनों वो अपने एड की शूटिंग तक नहीं कर रहे थे। I was telling him, this month here is there, whatever few endorsements at least do it, add more to the kitty. But he should be able to. Exactly. No, it's his call ultimately. सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेकर सारी बातचीत में एक बात बहुत साफ है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों पर पूरा अधिकार जमा रही थी। वित्तीय सलाहकारों से बातचीत सुनिए। So See, right now that he steps only will had his take- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and Yes. some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be yeah, managed also it well. not the highest I know, but I'm saying I would not for put someone money like me, as many who when I know that it's just there, all I can suggest is It's make it every here rate. and immediately so every low that we only put a certain amount and then we did not. Right. rather than it Please, being what- open in a card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is him from Kotak Privy to Kotak Wealth. All They that, will shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does, or a private, or an ASK Chai advisor. coffee now. I've told him, Charles coming. Also will make money. Yes. Will take इस पूरी बातचीत को सुनकर सवाल उठता है कि रिया किससे बचाना चाहती थी सुशांत का पैसा। जब रिया ने बताया कि कोटक में पैसा डालने पर कमीशन मांगा जाता है, तो सुनिए सलाहकार से रिया की क्या बातचीत हुई।
Everybody does. You know, it's just a question of who will make lesser commission. The people who charge 1 lakh a year and they're happy. Somebody who charges 0.25. One person heads, right? You just talk and diversify it as much as you can. Sure. I mean, I don't know if there's enough to even just buy a small, like, you know, to invest in a small property. Still, use the cards come in someone else's hands, right? Really Don't keep swipe an limited. open-ended limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a Swipe, single Daily swipe swipe. limit, yeah. 50 There is a grand. limit. Oh, there is a per limit. swipe. Yeah. So we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit, and the smaller one has a 50 grand. सुशांत ने कुछ प्लान भी कर लिया था और जल्द ही कुछ शुरू भी करने वाले थे। As soon as I get an idea about So we can park this for Wednesday or Thursday. Cool. Is it 14th would be a off kind of thing. Sankrant thing. When is it? Wednesday. For my birthday, for sure. 21st. 21st. What time? I'm okay. My Wednesday is open, so. If you want me around you as a gift. ठीक है. Evening. How about Security is a that? great Just gift. keep it Yeah. last meeting of the day. That should be all right. Wednesday around 7ish. So my birthday No, gift no, will be a great Wednesday is a portfolio. Oh, that sorry, you- I don't have your birthday. 21st. One of my clients is working on mixers on North Gift West, is the only portfolio Thursday. that. Oh, this can be devised. I'll call the ठीक है. investor guy. In fact, now once I leave from here. साथ में डिस्कस करके आ जाए. सुशांत चाहे जो प्लान कर रहे हो, मगर रिया के दिमाग में सुशांत के पैसे को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। If we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is trustees best. will decide. Will decide what is best Best, to be yeah, done. which has a better return rate and which less risky. And you So can see, define all that. It can be a whoever you- simple or a huge document, as critical, as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally I feel also that personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. सुशांत की बातों से कहीं नहीं लग रहा कि वो खुदकुशी की भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो पुणे के पास पावना में जमीन खरीदना चाहते थे। That's what I in fact told her. That give it 5-6 months here. No problem. Because you have the place. And we're paying rent and it's And not then you working. go to Goa and see if you want. For a month. Yeah. I was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive. Yeah, for but Pavna the standards, it's property, it's and It's he fine. seems to be enjoying it. And Yeah. So I don't know the size of the property. We checked with some person who lives there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. Yeah. So I don't know how big this But property it's is. done, it's made well. There's like a river also close by, right? You have Lake. access to the There's lake. a Pavna dam over there. So lost But making then I'm not decision. going to use it now. So But you'll need one car, right? Still have a rainy day. I mean, like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something. एक महीने के We बाद don't एक get बार that much करते money हैं. to buy an Innova. Wouldn't it say you can take a trade? Selling the Maserati. Maserati. You won't get. But why sell a Maserati? Buy an Overnight Innova. सब करने की जरूरत It's a नहीं है. Maserati You're by not range. my decision. But it's just that I'm just saying that fascination of buying those things. Lived. There is Today, no more on fascination. Wednesday when we meet, we'll discuss these companies and trust the NI. Okay. Wednesday, Thursday जो भी है. Whichever, We'll so figure out we the coordinate rest. in whichever day is convenient. रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। You can give him an idea of how much money he can get every month from Well, returns. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. That's, able to get that. yeah, that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of Of, what will be the return? well, we are taking just not even 9 to 12% per annum. And after taxes, you will be left with 5 lakhs a month. So We could have a higher rate of return when the risk increases, yeah. you're the boss. No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that money. No But insurance if it's policy. We got him a life insurance that is maturing. We haven't seen That's that in the There is books. no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance. I can let go of these fancy cars when I'm one. Yeah, you can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, We it's don't too need to make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. Let's save a sleep few and lakhs, put our right? heads together and diversify it as much and find you money that you need every month. The What car is a will not good even income? fetch you What is a 50. good number for you? Is it 8 to 10 lakhs? Is it 7 lakhs? What is it? Tell us. We'll work backwards.
but don't start disposing of assets. You still have a rainy day to see. Yeah, and I'm still telling him 1-2 months later we can get to the, if you're like very certain. Yeah. Like, Take my advice. You're not at the stage that you need to start disposing of assets. I will tell you. As much as I like you, I will tell you if it's a tooth that is going to pinch. You don't need to do it right now. Stop यार मुझे एक black coffee दे दे. spending as soon as possible. Yeah. Huh? Give me the cards. I keep them with me if you want to spend. There are no any other expenses but the house functioning and the staff costs, which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan, until he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना चाहते थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो आदमी एक अच्छी खासी जिंदगी जीने की प्लानिंग कर रहा हो, अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहा हो, अपना पैसा सुरक्षित रख रहा हो, वो भला खुदकुशी क्यों करेगा? अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सवाल महत्वपूर्ण है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगातार 9वें दिन भी मुंबई में लगी हुई है। आपने सुशांत सिंह राजपूत की आवाज सुनी, अब आप रिया की आवाज सुनी। रिया आज सीबीआई के सामने बोल रही थी। सीबीआई ने आज लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। कल की पूछताछ 10 घंटे चली थी और आज 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। इस तरह से कुल मिला लिया जाए तो 17 घंटे तक रिया ने सीबीआई के सवालों का सामना किया। रिया और शौविक चक्रवर्ती के साथ 6 लोग आज सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई जानती है कि रिया सुशांत के बहुत करीब थी और इसीलिए एक बड़ी राजदार थी, लिहाजा उनके बयान को सीबीआई बड़े ही गौर से ध्यान से सुन रही थी। सीबीआई ने रिया से क्या क्या पूछा और अब इस केस की जांच किस तरफ जा रही है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। आगे ये भी संभव है कि कल सीबीआई रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुला ले। ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी मोमेंट कह सकते हो इस यहाँ से बिल्डिंग से निकलेंगे। रिया चक्रवर्ती की कार को यहाँ पर एस्कॉर्ट किया जाएगा और उन्हें पहुँचाया जाएगा। 16 घंटे बाद सुशांत की राजदार रिया चक्रवर्ती दोबारा सीबीआई के सामने दोपहर 1:30 बजे के करीब हाजिर थी। चेहरा ढका था लेकिन आंखें सब बोल रही थी। माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा रहा था। रिया ने कैमरे से बचने की पूरी कोशिश की। रिया से पूछताछ का राउंड 2 शुरू होने से पहले गजब की अफरा तफरी मची। सुबह से ही उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। यही वजह है कि सीबीआई को मुंबई पुलिस से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने को कहना पड़ा और तब जाकर वो मुंबई पुलिस के पहरे में 3 घंटे की देरी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। सीबीआई ने आज 6 लोगों से सवाल पूछे। रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक रहे नीरज सिंह, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सीए संदीप श्रीधर। सुशांत सिंह राजपूत रिया के सबसे करीब थे। सीबीआई अब रिया को पढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की पूछताछ में 3 बातों पर फोकस किया गया। पहली, सुशांत का डिप्रेशन, दूसरी, सुशांत की आर्थिक गतिविधि और तीसरी, ड्रग कनेक्शन। आज तक ने रिया चक्रवर्ती से जब सुशांत के डिप्रेशन को लेकर सवाल पूछा था तो रिया चक्रवर्ती का साल 2013 में सुशांत सिंह राजपूत ने जाने माने मनोचिकित्सक हरीश शेट्टी से इलाज कराया था। अपने 1 साल के रिश्ते के दौरान रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि सुशांत को कई बार पैनिक अटैक आए और डिप्रेशन को लेकर वो कई जाने माने डॉक्टर्स से भी मिले। मुंबई पुलिस की माने तो सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। रिया ने भी उनके डिप्रेशन की बात मानी है। तमाम डॉक्टरों ने भी सुशांत के डिप्रेशन के बारे में खुलासे किए थे। अब सीबीआई ने आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर सवाल पूछा। क्या सुशांत को डिप्रेशन की समस्या थी? आपको कब पता चला कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं? सुशांत किस तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे थे? क्या आप सुशांत के साथ किसी डॉक्टर के पास गई थी? क्या आपने सुशांत के लिए किसी डॉक्टर का चयन किया था? सुशांत के लिए कौन दवाइयां खरीद रहा था? सुशांत को दवा कौन देता था? क्या आपने कभी सुशांत को दवाइयों की खुराक दी? क्या आपने 8 जून को
सुशांत के डॉक्टर को फोन किया? सीबीआई के इन सवालों का विश्लेषण करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सीबीआई रिया से दो बातें जानना चाहती थी। पहली बात ये कि क्या डिप्रेशन से लड़ रहे सुशांत के इलाज की पूरी व्यवस्था को वो कंट्रोल कर रही थी, और दूसरी ये कि क्या सुशांत खुद अपने इलाज के बारे में फैसले नहीं ले पा रहे थे। सुशांत खुद डॉक्टर को मिलके चूज करता था whether or not he wanted to continue treatment with such and such doctor, yes or no, depending on the interaction. मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते। चक्रवर्ती पर दूसरा गंभीर आरोप ये है कि वो सुशांत के पैसों पर कब्जा जमाए बैठी थी। पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहा था। आज सीबीआई ने रिया के मुंह से ही सच जानने की कोशिश की। सवाल पूछे गए कि क्या आपने सुशांत को अपना खर्च उठाने के लिए मजबूर किया? क्या आपने सुशांत से कैश में पैसे लिए? सुशांत आपके भाई का खर्चा क्यों उठा रहे थे? आपने और आपके भाई ने सुशांत के साथ फर्म क्यों शुरू की? क्या आपने सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य ने सुशांत से पैसे लिए? दरअसल सीबीआई रिया के परिवार से सुशांत के आर्थिक कनेक्शन को समझ रही। इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है कि क्या सुशांत पर दबाव बनाकर उसके दिलो दिमाग पर कंट्रोल करके पैसे निकाले गए। आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे। क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, आई वॉज नॉट लिविंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मनी। तीसरा एंगल ड्रग्स को लेकर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी जांच में जुटी है। रिया और गौरव आर्या के बीच चैट से राज खुले हैं। इस चैट के सामने आने के बाद देश की 2 सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के अलावा एनसीबी भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो गई। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बात की जांच करेगी कि मामला सिर्फ ड्रग्स की खरीदारी का है, इस्तेमाल का, या फिर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के धंधे में भी शामिल है। इसके अलावा सीबीआई ने अब तक जिन गवाहों से पूछताछ की, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, इन सब का भी मिलान कराया जाएगा। अगर सीबीआई को जरा सा भी इसमें शक की बू आती है तो फिर केस का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता है। विद्या और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। दरअसल हर कोई ये समझना चाहता है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ। 8 से 14 जून के बीच सुशांत कैसा व्यवहार कर रहे थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में सिलसिलेवार तरीके से 8 से 14 जून तक की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया है। इससे ये अंदाजा लगता है कि सुशांत की हालत क्या रही होगी। 8 जून को सुबह 11:30 बजे रिया सुशांत के घर से चली गई। 8 जून को रिया के जाने के बस कुछ ही देर के बाद सुशांत की बहन मीतू आती हैं। 8 जून को बहन से बात करते वक्त सुशांत ने पुराने दिन याद किए और वो रोने लगे। 8 जून को मीतू के कहने के बावजूद सुशांत ने कुछ ज्यादा नहीं खाया। सुशांत कम बोल रहे थे तो मीतू ने सुशांत से घर में लोगों से उन्हें बातचीत करने के लिए कहा। इसके बाद 9 जून को दिशा सालियान की मौत हो गई और इसके बाद सुशांत बेहद परेशान हो गए। 10 जून को सुशांत ने इसी परेशानी में अपने दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को अपने साथ सोने के लिए बोला और दिशा की मौत के बारे में अपडेट करने के लिए कहा। 10 जून को सुशांत ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने के लिए कहा। 12 जून को सुशांत के घर से मीतू अपने घर वापस चली गई, उनकी बहन। 12 जून को सुशांत ने कुछ बिल पेमेंट्स किए और रात का खाना उन्होंने नहीं खाया। 13 जून को भी सुशांत ने डिनर नहीं किया। 14 जून को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच केशव आया और इसके बाद पता चला कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे। ये बातें सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताई हैं। सिद्धार्थ पिठानी सहित 4 गवाहों ने सीबीआई के सामने जो बयान दिए हैं, उनसे 14 जून के घटनाक्रम को समझने में मदद मिलती है। इस केस की जांच में रिया के साथ साथ ये 4 चेहरे भी पढ़े जा रहे हैं। आज तक ने पता लगाया है कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के घरेलू स्टाफ नीरज, केशव और दीपेश सावंत, इन चारों ने सीबीआई के सामने क्या क्या बयान दिए। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा था और अंत में बांद्रा के अपार्टमेंट में सुशांत को मरा हुआ पाया था। सीबीआई ने अपनी पूछताछ के दौरान इन चारों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के हाउस बॉय दीपेश सावंत ने अपने बयान में सीबीआई को बताया कि सुशांत ने 13 जून को डिनर नहीं लिया था। ये उनकी मौत के दिन यानी 14 जून से ठीक पहले वाली रात थी। सुशांत ने मैंगो शेक लिया था। दीपेश सावंत के मुताबिक उसने सुशांत को अगले दिन सुबह 6:30 बजे अपने बेड पर बैठे हुए देखा था। सुशांत सिंह राजपूत अकेले थे और उन्होंने चाय नहीं ली थी। दीपेश सावंत को उस समय तक कमरे में कुछ भी रहस्यमय या संदेहपूर्ण नहीं लगा। सीलिंग फैन ऑन था, खिड़की और कुछ पर्दे खुले हुए थे। नीरज जो सुशांत का कुक है और घरेलू कामों में मदद करता है, सुबह 7 बजे उठा। 1 घंटे बाद नीरज ने सुशांत सिंह राजपूत को देखा। सुशांत ने नीरज से ठंडा पानी मांगा, जो नीरज ने उसे लाकर दिया। केशव जो सुशांत का कुक है, उसने सीबीआई को बताया उसने सुशांत को 9 से 9:15 के बीच अनार का जूस और नारियल पानी दिया था। यह आखिरी बार था जब सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा गया था। इसके बाद जब वो सुबह 10 से 10:30 के बीच ऊपर गया, तब उसे सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने ये बात सिद्धार्थ पिठानी को बताई। 14 जून यानी सुशांत के मौत के दिन उस फ्लैट में क्या कुछ हुआ, सीबीआई को ये पता है कि उस घर में मौजूद 4 लोग यानी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 कर्मचारियों को अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए सीबीआई ने लगातार उनसे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की कि सुशांत की मौत के पहले और मौत के बाद में आखिरकार क्या कुछ हुआ। राजपूत के दोस्त और फ्लैट में रहने वाले साथी सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो खुद और बाकी के 3 स्टाफ मेंबर दरवाजा खटखटाते रहे, सुशांत को कॉल करते रहे और डुप्लीकेट चाबियां ढूंढते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान सुशांत की बहन मीतू का फोन आया और उन्हें ताला लगे होने के बारे में बताया गया। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को बुलाया, जिसने दरवाजा तोड़ा। उस चाबी वाले को 2000 रुपए दिए गए और जाने को कहा गया। पिठानी ने सीबीआई को बताया कि दरवाजा टूटने के बाद वो दीपेश सावंत के साथ अंदर गए और वहां सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटक रहे थे। पिठानी ने मीतू सिंह को इसकी सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाई। पिठानी और सावंत ने सुशांत सिंह राजपूत का शव बेड पर उतारा। सुशांत की बहन मीतू 5 मिनट बाद आई और इसके बाद सीबीआई के मुताबिक अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है तो यह बात इन चारों को पता है। अगर ये स्टेज सुसाइड का मामला है, तब इनमें से कम एक शख्स उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, और अगर ये खुदकुशी का मामला है तो इन चारों के बयानों से कम यह पता चल पाएगा कि आखिरी वक्त पर सुशांत के मन में क्या चल रहा था। और इसीलिए सीबीआई इन चारों से लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। सुशांत के मामले में जांच का एक बड़ा एंगल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसों का दुरुपयोग किया। रिया ने आज तक से इंटरव्यू में इन आरोपों से इनकार किया है कि वो सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी। इसीलिए आज हमने सुशांत के खर्चों का विश्लेषण करने का फैसला किया। आज तक के पास सुशांत के बैंक अकाउंट की एक स्टेटमेंट है, 10 महीनों का ये बैंक स्टेटमेंट, जिसके आधार पर हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सुशांत के खर्च को समझने की कोशिश की। He lived like a star, he lived like a king, he loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे। क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off सुशांत सिंह राजपूत's money. We were living like a couple. सुशांत के पैसे पर ऐश करने के आरोपों को रिया में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहाँ की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोस टिकट्स व्हिच आई हैव दोस टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। ही कैंसल्ड दोस टिकट्स एंड बुक्ड फर्स्ट क्लास टिकट्स एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रिप ही पेड फॉर द होटल्स ही वांटेड टू and I absolutely didn't have a problem with that. रिया का दावा है कि सुशांत ने विदेश टूर पर खुद सारे खर्च किए थे। Innocent family. सुशांत के खर्चों पर आज तक ने सुशांत के एक बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के आधार पर विश्लेषण किया है। जानी मानी फॉरेंसिक वित्तीय विशेषज्ञ नम्रता कनोडिया का मानना है कि सुशांत आमतौर पर शाह खर्च था, यानी खुले दिल से पैसे खर्च करता था।
मुंबई के बैंक की ये स्टेटमेंट पिछले साल सितंबर के महीने को छोड़कर जनवरी से नवंबर की है। सुशांत ने 2019 के 10 महीनों में 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। इनमें 42 लाख रुपए यात्रा और खुद पर 44 लाख रुपए खर्च किए। सुशांत ने ड्रिंक्स और स्मोकिंग पर 9 लाख रुपयों से अधिक और क्लब पर 20 लाख रुपयों से अधिक खर्च किए। हमने सुशांत सिंह राजपूत के एक अकाउंट के 10 महीने के स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया, और जिसमें करीब 4 करोड़ 60 लाख उनके टोटल विड्रॉल्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, एंड उसमें 42 लाख ट्रैवलिंग में खर्चा है, 33 लाख रुपए फार्म हाउस रेंट और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, करीब 1 करोड़ 10 लाख उनकी पर्सनल लग्जरीज, जिम ट्रेनिंग, कार एक्सपेंडिचर्स, टेलीस्कोप, इस तरह की चीज़ों पे है, और 9.5 लाख रुपए रेहा और उनके भाई पे खर्च हुए हैं, जिसमें लगभग 1,70,000 रुपए फ्लाइट का खर्चा है, 4,72,000 उनके भाई के होटल स्टे का खर्चा है, और 3,40,000 लगभग मेकअप, शॉपिंग और इन सब तरह की चीजों पे खर्चे हैं। सुशांत की लाइफ स्टाइल में चमक दमक थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था। सुशांत ने फरवरी से अप्रैल के बीच 16 लाख रुपयों से अधिक का दान किया और करीब 3 लाख रुपए उसने पूजा पाठ और उससे जुड़ी चीजें जैसे रुद्राक्ष खरीदने पर खर्च किया था। लेकिन सुशांत के खर्चों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ नम्रता को चौंकाने वाली बात ड्राई फ्रूट्स के पेमेंट्स के पैटर्न में मिली। जनवरी 2019 से मई 2019 के बीच ड्राई फ्रूट्स पर 5.25 लाख रुपए खर्च किए गए। ड्राई फ्रूट परचेजेस में कुछ अनयूजुअल एंट्रीज विजिबल होती हैं बैंक स्टेटमेंट में, जैसे कि 20 जनवरी को 32,000 के ड्राई फ्रूट खरीदे गए, फिर 21 जनवरी को फिर से 32,000 के, 25 जनवरी को फिर 32,000 के ड्राई फ्रूट। अगर ये कोई गिफ्ट पैकेट खरीदने के लिए है देन वी कैन थिंक कि ये शायद खरीदे होंगे, पर सिमिलर तरीके से ही फरवरी में, मार्च में, मई में 3-4 बार 36,000, 36,400 ऐसे करके ड्राई फ्रूट परचेजेस के एंट्रीज आती हैं। सुशांत के बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक एनालिसिस में यह भी सामने आया कि करीब 25 लाख रुपए नगद निकाले गए। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स की जांच ईडी और सीबीआई कर रहे हैं। 4 बैंक स्टेटमेंट्स उन तक पहुंच चुके हैं। उन्हीं में से एक बैंक स्टेटमेंट वो है जो कि आज तक की इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट ने करी है। अब आगे की कार्रवाई ईडी और सीबीआई करेंगे। मुंबई में दिवेश सिंह के साथ, नई दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। आज सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के दावों पर अपने जवाब दिए हैं और सुशांत से जुड़े कई खुलासे भी किए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कुछ आरोप संजना सांघी पर लगाए थे, इन पर संजना ने क्या जवाब दिए, सुनिए। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। पहले मुझे लगा कि क्यों, ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को-स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मी टू यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम।
and that continued, unfortunately. Every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So yeah, I have nothing new to say at all. ये मी टू एलिगेशन सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही absurd चीज है. काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे. उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था. He used to be very upset. He felt he was being targeted? Absolutely. So I'd never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew. You know, there was with your best friend you can be like, no, they're behaving differently, but I couldn't do that. आपने संजना सांघी की बातें सुनी. इन बातों की जड़ है रिया के वो दावे जो उन्होंने आज तक के इंटरव्यू में किए थे. इस इंटरव्यू में रिया ने खुद पर लगे आरोपों पर भी खुलकर बातचीत की, लेकिन रिया ने जो दावे किए उनमें से कुछ पर सवाल उठ रहे हैं. हमने रिया के ऐसे 6 बयानों का किया है विश्लेषण जिन पर विरोधाभास है. सत्यमेव जयते. रिया चक्रवर्ती सत्यमेव जयते कहती है, लेकिन उसकी बातों में घुमावदार मोड़ है. आज तक को दिए लंबे इंटरव्यू में रिया ने ढेरों सफाइयां दी, लेकिन क्या वो अपनी ही कुछ बातों में फंस गई है कि सुशांत जब उनके साथ यूरोप टूर पे गए थे तो फ्लाइट से उनका डर सामने आया, लेकिन सुशांत ने खुद आज तक से एक पुराने इंटरव्यू में इसके उलट बातें कही थी. यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी, और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली. फिल्म्स तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी करूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू है, लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन. हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं. रिया ने आज तक से इंटरव्यू में कहा था कि 8 जून को उसे सुशांत ने घर छोड़ने को कहा था, लेकिन 8 जून की रिया की महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट अलग कहानी कहती है. व्हाट्सएप चैट में रिया अपने फिल्मी कैरेक्टर आयशा का नाम लेकर कहती है, आयशा आगे बढ़ चली है, भारी मन लेकिन सुकून के साथ. बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ. रिया ने सुशांत की मौत के राज आज नहीं तो कल खुल ही जाएंगे, जिसका पूरे देश को इंतजार भी है, और इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी भी रहेगी. मगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की साजिशें तो पूरी तरह से फिर से खुल गई हैं. पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए सुरंग बनाने में जुटा हुआ है. ऐसी एक सुरंग पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बनाई, लेकिन बीएसएफ ने सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया. दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क बरसों बरस से ऐसी साजिश की दुनिया जब कुरुंध है तो पाकिस्तान सुरंग बनाने में, मगर पाकिस्तान इस सुरंग का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले सुरंग को तला. सांबा एरिया में पाकिस्तान की तरफ से कोई टनल जो है वो खुदी हुई है, इसको लेके हमने कुछ एक स्पेशल टीम्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही थी, और उनमें से एक टीम ने कल शाम को बॉर्डर के 150 गज के अंदर एक टनल को ढूंढ निकाला. मतलब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने जितना कुदाल चलाया उस पर हमारे बीएसएफ के जाबाजों ने पानी फेर दिया. बताओ, खून पसीना एक एक करके पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारत की ओर करीब 170 मीटर ये सुरंग बनाई, मगर मामला गड़बड़ा गया. ये टनल करीब 150 गज है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और इंडिया में पहुंचने पर इसकी करीब गहराई जो है वो 20 से 25 फुट ग्राउंड के नीचे है.
इसका जो मुंह है वो कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट गाया का खुल रहा है और उसके मुंह के ऊपर प्रॉपरली सैंड बैग के साथ में इसको रीइंफोर्स किया हुआ। उन सैंड बैग्स के ऊपर जो मार्किंग है वो पाकिस्तान की है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, चक्रगढ़ लिखा हुआ है। सुरंग को देखकर लगता है कि इसे कुछ रोज पहले ही बनाया गया है। यहाँ मिली रेत की बोरियों में शकरगढ़ कराची लिखा है। जिस तरह से सुरंग को बनाया गया उससे लग रहा है कि सुरंग बनाने में पाकिस्तानी सेना का हाथ हो सकता है। संभव है इसे आतंकियों की घुसपैठ, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रही है। ये इंडिकेट होता है कि ये टनल जो है ये पाकिस्तान से शुरू हुई है, यहाँ तक आके खत्म हुई है और इसमें इतनी बड़ी टनल खोदने में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जरूर हाथ है और उनका नॉलेज है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग खोजने का एक बड़ा अभियान चलाया है। पाकिस्तान से लगने वाली करीब 3,300 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथों में है और बीएसएफ पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने सुरंग वाली साजिश। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरदार में कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।